अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। हमने जो रीडिंग की थी बेटा, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रह गए थे। दो मैंने आपको करवा दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आंसर उसके अंदर आ गए हैं, तो वो मैं अब आपको करवाने लगी हूँ। सो क्वेश्चन नंबर C, 1C is what is an insulator? What are insulator useful? The answer is given on page number 84. On page number 84, conductors and insulators. थर्ड लाइन में देखिए बच्चों, मटेरियल्स लाइक वूल, फर एंड फीदर्स, यहाँ से आंसर का स्टार्ट लेंगे। दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की हेडिंग देंगे यहाँ पे। फिर हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स। Number 1, the handles of pots and pans are made of wood or plastic so that heat is not conducted from the pan to the handle and we do not burn our hands. Number 2, इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। Firefighters wear clothes made of an insulating material called fiberglass. Number 3, air is a good insulator. We wear woolen clothes in winter to keep warm because wool traps air between its fibers. This was the answer. Now on page number 92, question number 4 or 1D, what are methods of heat transfer? The answer is given on page number 84 and 85. On page number 84, conduction, methods of heat transfer लिखा ना इसके ऊपर, ये हेडिंग देंगे और कंडक्शन की हेडिंग देंगे। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स बाय कंडक्शन इफ वन एंड ऑफ अ स्पून is dipped in hot water, the other end heats up after a short while. This happens because the molecules at the dipped end gain energy from the hot water, start vibrating and push the molecules in front of them. On gaining energy, these molecules also start vibrating, and in this way a chain reaction is set up by which the other end of the spoon heats up. One part जो है इस आंसर का ये है। And now on the page number 85. On page number 85, convection heading देंगे बच्चों। Convection occurs when heat is transferred from one part of a fluid to another by the movement of the fluid itself. The ventilation of room and heating water in a pan are examples of convection. This was the कंप्लीट आंसर। पहले कंडक्शन लिखेंगे, फिर कन्वेक्शन लिखेंगे, ये इसका आंसर कंप्लीट होगा। अब फिर से आए एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1E, व्हाट इज कंडक्टिविटी? हाउ कैन द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी कंपेयर्ड एक्सपेरिमेंटली? द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 84. ऑन पेज नंबर 84 कंडक्शन में देखें, कंडक्टिविटी मोटा लिखा हुआ है, ये हेडिंग देंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। आगे हेडिंग देंगे टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। टेक सम रॉड्स व्हिच आर ऑफ द सेम लेंथ एंड थिकनेस बट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज वुड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. Dip them in wax and allow them to cool. Then pass them through a specially made metallic box which has holes on its sides. Pour hot water in the box. After a few minutes, remove the rods. You will observe the wax melts to a different distance on each rod. मेल्ट जो हुई है वैक्स, वो इसलिए हुई है कि डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो दिस वाज द आंसर। अब आए अगले क्वेश्चन की तरफ। Prove an experiment that water is a bad conductor of heat. The answer is given on page number 85. Page number 85 पे देखें, to prove that water is a bad conductor of heat. This is the answer. Wrap a cube of ice in a piece of concourse and drop it into a test tube full of water. Hold the tap. Hold the top of the tube close to a Bunsen flame. You will observe that although the water at the top boils, the ice at the bottom of the tube does not melt. Okay, this is the answer of your question. Now students, next question.
Question number 1G. How do convection current move in a liquid? Answer is given on page number 85. On page number 85, to demonstrate convection in a liquid, fill a conical flask with tap water and drop a large crystal of potassium permanganate into it. Heat the flask as upward current of colored water will rise and spread outwards. It will then move down the sides of the flask, showing that a convection current has been set up. This is the answer. तो स्टूडेंट्स इतनी रीडिंग हमने उस दिन की थी, जो इसमें से मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करवाए. अब हम फर्दर रीडिंग करते हैं. तो स्टूडेंट्स आज जो हमने रीडिंग करनी है वो है कन्वेक्शन करंट इन नेचर. विंड, जब ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसके इर्द गिर्द वाली विंड जो है वो हवा जो है एटमॉस्फेयर जो है उसमें हवा जो है गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर वाली ठंडी हवा इसकी प्लेस लेने आती है. इस तरह से हवा चलती है, विंड बनती है. मॉनसून विंड जो है वो भी इसी तरह से होती है. जब एक तरफ से दबाव कम हो जाता है हवा का तो दूसरी तरफ से उसकी प्लेस पे हवाएं ठंडी जो हैं आती हैं, उससे बारिशें होती हैं. उसको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं. ठंडी हवाएं चलती हैं. थर्मल्स, जब हवा बहुत गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है. इसी मेथड से जो परिंदे जो हैं अपने आप को उस हवा के ज़ोर से ऊपर लेके जाते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मल्स. लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड मतलब ड्यूरिंग द डे टाइम जब लैंड हीट अप हो जाती है तो इसके ऊपर वाली हवा भी हीट अप हो जाती है, लेकिन सी उस वक्त जो है वो ठंडा होता है और उसकी हवा भी उसके ऊपर वाली ठंडी होती है. तो सी की तरफ से लैंड की तरफ विंड चलती है दिन के वक्त, उसको हम कहते हैं सी ब्रीज. और रात के वक्त क्योंकि सी गर्म हो जाता है और लैंड ठंडी हो जाती है तो लैंड से सी की तरफ हवा चलती है, उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज. रेडिएशन जो है ये एक स्पेसिफिक वे है जिसके ज़रिए रोशनी जो है एनर्जी, किसकी एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है हम तक पहुंचती है, तो उसको हम कहते हैं रेडिएशंस. जो ब्लैक कलर होता है, ये सारे के सारे 7 कलर्स होते हैं आपको पता है लाइट के अंदर, तो वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अभी ब्लैक दिखाई देता है. जो वाइट कलर होता है वो सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वाइट दिखाई देता है. इसीलिए इसी तरह से कलर्स दिखाई देते हैं, जो कि जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो कलर दिखाई देता है. ठीक है, इसीलिए कहते हैं ब्लैक सर्फेसिस ज़्यादा एब्जॉर्बर होती हैं और वाइट सर्फेसिस ज़्यादा रिफ्लेक्टर होती हैं. इसलिए हम गर्मियों में वाइट कपड़े पसंद करते हैं और सर्दियों में ब्लैक. थर्मस फ्लास्क, आपको पता है हर घर में थर्मस होता है. उसके अंदर अगर चीज़ डालें तो लंबे अरसे के लिए गर्म या ठंडी रह सकती है. उसके अंदर एक शीट जो है लगाई होती है शीशे की, उसके बाहर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया होता है जिसकी वजह से वो लंबे अरसे तक गर्म रह सकती है उसके अंदर या ठंडी रह सकती है उसके अंदर मौजूद चीज़. ठीक है जी, अब हम करते हैं रीडिंग. तो आए बुक की तरफ जी. तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 85 यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी. टू डेमोन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन एयर. अब हम करने जा रहे हैं कन्वेक्शन करंट इन नेचर. विंड हॉट एयर फ्रॉम द अर्थ राइजेस एंड कोल्ड एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस. दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ये मैंने आपको बताया कि गर्म हवा जब ठंडी हवा जो है उसकी जगह लेने आती है गर्म हवा की अर्थ के ऊपर, तो हवा चलती है. मॉनसून विंड्स आर कन्वेक्शन करंट विंड्स विच ब्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द लैंड एंड द सी. सी के और लैंड के डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से मॉनसून विंड्स चलती हैं. थर्मल्स, द अपवर्ड करंट्स ऑफ वार्म एयर दैट राइज बाय कन्वेक्शन आर कॉल्ड थर्मल्स. यही मैंने आपको बताया कि परिंदे उड़ने में मदद देते हैं इससे, जब हवा ऊपर राइज करती है गर्म. The air in a thermal can rise at very great speeds. This can be great use to birds and humans who fly by gliding because they can use the thermal to gain height without using any of their own energy. Without energy के भी हम जो हैं ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग जब करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं थर्मल्स. एनर्जी लगाए बगैर हम ऊपर जा सकते हैं, हाइट गेन कर सकते हैं. Pilots of flight aircrafts try to avoid flying through convection clouds because the air inside the cloud is turbulent. This means that is swirling around at great speed. This can make the aircraft lose control. पायलट जो हैं थर्मल्स के अंदर आना जो है पसंद नहीं करते क्योंकि इस वजह से एयरक्राफ्ट का कंट्रोल जो है ख़राब हो सकता है
और वो उसके अंदर फंस सकता है। लैंड एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट्स क्विकली बाय द heat of the sun. As a result, the air above it becomes hot. As this air expands and rises, the cooler air above the sea blows in to take in its place. This is called a sea breeze. ये टाइम जो है वो लैंड से सी की तरफ हवा चलती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं. एट नाइट द सी वाटर विच हैज़ absorbed heat during the day remains hot for a longer time. Then the land and so the air above the sea warm up, heat expands and rises, and in this way the convection current is reversed. The breeze now blows from the cooler land to the sea is called the land breeze. अब जो है रात के वक्त उल्टा हो जाता है, सी जो है गर्म होता है और लैंड जो है वो ठंडी हुई होती है, तो लैंड से सी की तरफ हवा चलती है, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज. रेडिएशन इज अ पर्टिकुलर वे इन विच एनर्जी ट्रैवल. ये बताया मैंने बच्चों आपको. दिस एनर्जी नीड नॉट टू बी कैरीड बाय द मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. रेडिएशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. इट कैन ट्रैवल इन स्पेस बिकॉज इट इज़ नॉट कैरीड बाय मूविंग पार्टिकल्स विच नीड अ मीडियम टू ट्रैवल इन. द अर्थ इज हीटेड बाय द हीट रेडिएशन ऑफ द सन. दिस हीट ट्रैवल्स थ्रू स्पेस एंड रीचेज द अर्थ. अब ये जो है इसको क्योंकि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्पेस से ट्रैवल करते हुए हम तक पहुँच जाती है. Some of it is absorbed and some of it is reflected back. Clouds cut down the amount of heat radiation reaching the earth. Clouds अगर आ जाए दरमियान में तो heat radiation उससे कम हो जाती है. White reflects more heat and black absorb more heat. ये भी मैंने आपको बताया बोर्ड पे बच्चों कि white जो है ज़्यादा reflectant होता है और black जो है वो ज़्यादा absorber होता है. Some surfaces are better at absorbing radiation than others. Standing in the sunshine, a black car warms up more quickly than any other color. Some surfaces are better at sending out and emitting radiation than others. A black saucepan cooks down more quickly than the other. Could you design an experiment to test it for yourself? जो black होगा ना saucepan हमारा, उससे हमें कुक करने में आसानी होगी क्योंकि उससे कुकिंग जो है क्योंकि ब्लैक ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा तो कुकिंग ज़्यादा जल्दी हो जाएगी. गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन आर आल्सो गुड एमिटर्स. डल ब्लैक सर्फेसेस आर द बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन. दे हार्डली रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन टू ऑल. शाइनी सर्फेसेस आर द वर्स्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन. दे रिफ्लेक्ट nearly all the radiation or strikes on them. Dull black surfaces are the best emitters of radiation. Silvery surfaces are the worst emitter of the radiation. इसी तरह different materials different radiation जो है वो emit करते हैं और absorb करते हैं. Shiny aluminium foil helps keep food dishes warm when they are served on the table. जो हमारी aluminium foil में होती हैं चीज़ें वो ज़्यादा देर गर्म रहती हैं क्योंकि वो जो है इर्द गिर्द के माहौल को कि लाइट और हीट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है. जी स्टूडेंट्स, ये हमने पेज नंबर 85-86 की रीडिंग कंप्लीट की. अब खोलें पेज नंबर 87. हाउ ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट. रेडिएशन फ्रॉम द सन passes easily through the glass walls of the greenhouse. It warms the plants inside. The warm plants also radiate heat which does not pass out through the glass. This builds up heat in the greenhouse. Shiny kettles keep their heat longer than other sorts of kettles. अब जो है ग्रीन हाउस में वो प्लांट्स हम उगाते हैं जिन्हें ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो लाइट ट्रैप हो जाती है और गर्म हो जाता है अंदर से. वो इस तरह से हम रिक्वायर्ड जो है उसको कर सकते हैं. जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सकता है इस तरह से. आगे स्टूडेंट्स ये जो है वो एक्सपेरिमेंट है, ये आपने घर पे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स करके देखना है कि वाइट वाली केटल या शाइनी ब्लैक या टोटल ब्लैक जो है किसमें पानी जो है ज़्यादा देर तक गर्म रहता है. नाउ ऑन पेज नंबर 87 हम पढ़ने लगे हैं थर्मस फ्लास्क. द थर्मस फ्लास्क इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस फेयरली कांस्टेंट बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट माइट टेक प्लेस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. थर्मस फ्लास्क ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखती है और किस वजह से, क्योंकि ये प्रिवेंट कर देती है कन्वेक्शन को भी, कंडक्शन को भी, रेडिएशन को भी. थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड
glass bottle which has a vacuum between the two walls. The inner sides of the walls are shiny. The mouth of the bottle is closed with the cork or plastic stopper. The glass bottle is fitted into a metallic or plastic container. Heat cannot enter or leave the flask due to the vacuum which check conduction and convection. The shiny surface reflects the heat waves. Anything inside the flask will remain hot or cold for a long time. ये जो थर्मस फ्लास्क होती है इसकी 2 सरफेसेस होती हैं और दरमियान में ये देखिए वाइट ये वैक्यूम क्रिएट किया गया है। ये ग्लास होती है और बाहर जो है इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और दरमियान में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड या जो भी हमने इसमें ठंडा रखा होता है या गर्म रखा होती है चीज़, तो वो जो है देर तक गर्म या ठंडा रहता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे भी और याद भी कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपना काम ध्यान से कीजिएगा। अपनी नीट कॉपीज़ पे आपने ये काम करके लाना।